दिन है. Today is a very special day. Today is श्री राम विजय उत्सव. आज श्री रामचंद्र का विजय उत्सव है. दशहरा का महान पर्व है जिस दिन भगवान श्री रामचंद्र ने रावण का वध किया था. Today is that auspicious day when Lord Shri Ramchandra killed Ravan. And today is specifically special for ISKCON devotees because today Srila Prabhupada's dream project, the Temple of Vedic Planetarium, has welcomed Srila Prabhupada's deity, and Srila Prabhupada is being installed today in the glorious Temple of Vedic Planetarium. आज ISKCON के लिए और भी महत्वपूर्ण एक दिवस है कि आज श्रील प्रभुपाद का जो एक स्वप्न था कि एक अद्भुत मंदिर का विकास हो और श्रीधाम मायापुर में TOVP टेम्पल ऑफ वैदिक प्लैनेटेरियम का निर्माण हो, तो उस टेम्पल ऑफ वैदिक प्लैनेटेरियम में आज श्रील प्रभुपाद की श्री मूर्ति की स्थापना हुई है. तो आज बहुत ही विशेष दिन है ISKCON के इतिहास के लिए. टुडे इज अ गोल्डन डे इन द हिस्ट्री ऑफ ISKCON. So we are very fortunate to witness this occasion. हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम इस अवसर पर हैं और इस महान पर्व को हम लोग मना रहे हैं. Srila Prabhupada's contributions to this world are matchless. Srila Prabhupada के अभूतपूर्व योगदान है इस पूरी पृथ्वी के ऊपर. And one of the most blessed special contribution of Srila Prabhupada is his Bhaktivedanta purports on Srimad Bhagavatam. और एक सबसे महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व योगदान श्रील प्रभुपाद का इस पूरी पृथ्वी पर है उनके भक्तिवेदांत तात्पर्य श्रीमद् भागवत के ऊपर. So we are very fortunate that we are getting this opportunity to read Srimad Bhagavatam, to study Srimad Bhagavatam from a pure devotee like Srila Prabhupada. हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त के अनुसरण करते हुए हम श्रीमद् भागवत के तात्पर्यों को पढ़ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, जीवन में अपनाने का प्रयास कर रहे हैं. So we are continuing our study of Srimad Bhagavatam from the first canto, 9th chapter, passing away of Bhishma Dev in the presence of Lord Krishna. हम लोग पहले स्कंद के 9वां अध्याय से पाठ कर रहे हैं जिसका नाम है भीष्म पितामह का महाप्रयाण श्री कृष्ण की उपस्थिति में, और इसके 26वें श्लोक से हम लोग एक साथ पाठ करेंगे. श्लोक संख्या 26. पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथा श्रमम वैराग्यरागोपाधिभ्याम अमनातोभ्यलक्षणम. So Sutta Goswami is describing, at Maharaj Yudhishthir's inquiry, Bhishma Dev first defined all the classification of castes and orders of life in the terms of the individual's qualifications. Then he systematically, in twofold divisions, described counteraction by detachment and interaction by attachment. महाराज युधिष्ठिर के प्रश्न पूछे जाने पर भीष्म देव ने पहले वर्ण और आश्रमों का विस्तृत रूप से व्याख्यान किया और फिर क्रमबद्ध रूप से उन्होंने प्रवृत्ति और निवृत्तिमान जो राग और वैराग्य का मार्ग है उन दोनों को समझाया. So here it is very interesting to note that Yudhishthira is asking questions from Bhishma Dev, and it may appear that we also know these teachings, right? Who doesn't know about Varna and Ashram in India? Everybody knows. So obviously Yudhishthira was also knowing them. But why Yudhishthira is still asking such questions, even at this stage?
Is it appropriate? And especially when somebody is on his deathbed, is it appropriate to ask him the questions which you already know? This is very interesting. एक तथ्य यहाँ पर बहुत ही रोमांचक है कि युधिष्ठिर महाराज यद्यपि इन वर्ण और आश्रमों के बारे में जानते हैं, प्राय भारतवर्ष में सभी लोग वर्ण और आश्रम के बारे में जानते हैं, कौन नहीं जानता, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज यहाँ पर इस वर्णाश्रम धर्म के बारे में भीष्म पितामह से पूछ रहे हैं जैसे कि मानो उनको पता ही ना हो, और वो भी ऐसे स्तर पर जहां भीष्म पितामह अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं, बाणों की शैया पर लेटे हुए। तो ऐसे समय पर क्या किसी व्यक्ति से हमें ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जिसके हमको उत्तर मालूम है? वास्तव में people come to a dying person. Generally in this material world, what happens? People come to a dying person to get his last property. People come, sons and daughters come with will to the parents. Oh, you didn't sign the wills, please sign it. So that after they leave, they get the property. Here, Yudhishthir Maharaj is taking spiritual property of Bhishma Pitama. जैसे कि भौतिक संसार में हम देखते हैं कि माँ बाप जब अपना शरीर छोड़ने वाले होते हैं तो बच्चे कागजात लेकर के आते हैं प्रॉपर्टी के, कि जिससे कुछ प्रॉपर्टी छूट ना जाए, उनको सब कुछ मिल जाए उनके जाने के बाद। उसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज यहाँ से आध्यात्मिक वो जो संपदा है जो भीष्म पितामह के पास में है, वो आध्यात्मिक संपदा को लेने के लिए आए। इसलिए तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि ग्रेट ग्रैंडफादर इज टेलिंग ग्रेट हिज ग्रैंडचिल्ड्रन। ये एक दादा का एक पोता पुत्रियों के लिए जो प्रेम है, उस रूप में भीष्म पितामह ने आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं। So this is very important that spiritual knowledge transmits when person is eager to receive the knowledge. आध्यात्मिक ज्ञान तभी आगे बढ़ता है गुरु से शिष्य को जब शिष्य बहुत ही उत्सुक हो, because it was not just about the facts and figures, the knowledge aspect, what Yudhishthira Maharaj was looking, it was Bhishma's realizations which Yudhishthira Maharaj was looking for. ऐसा नहीं था कि वो केवल कुछ तथ्यों को इकट्ठा करने के लिए युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह के पास गए, लेकिन युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह के साक्षात्कार जो उनके जीवन की संपदा है, जो अनुभव है भक्तिमय जीवन का, उस अनुभव को बटोरने के लिए युधिष्ठिर महाराज गए, और उसी को उपनिषद कहा जाता है। The meaning of word Upanishad means to sit near a self-realized person and to learn from him. उपनिषद शब्द का मतलब ही है कि किसी आत्म साक्षात्कार किए हुए व्यक्ति के पास में बैठ करके आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करना। तो कई बार इस तरह देखा जाता है कि हम लोग इस तरह प्रवचन सुनने में आनंद महसूस करते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स नहीं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान पॉइंट्स से नहीं मिलता है। हम लोग जब पुणे में थे, राधे श्याम प्रभु बोलते थे क्या पॉइंट्स इकट्ठे करके डायरी भर देंगे, डायरी भगवत धाम चली जाएगी, आप यहीं रह जाएंगे। So spiritual knowledge is not just about gathering the points. When we were in Pune, Radhe Shyam Prabhu used to tell that lectures are not just about writing notes. You will write notes, the notebook will go back to Godhead. Maybe you will remain back in the material world. So basically, we are looking for spiritual revelation. Jananivas Prabhu in Mayapur, he doesn't know Bengali language much, but still every day he sits in the Bengali Bhagavad Gita class because he is seeing it as an opportunity to get Krishna Katha. It's not just about understanding the topic, it's about drinking the nectar. Pivata Bhagavatam Rasmalayam. It is drinking the nectar of Srimad Bhagavatam. Jananivas Prabhu श्रीधाम मायापुर में रहते हैं, और यद्यपि बांग्ला भाषा का ज्यादा ज्ञान न होने के बाद भी वो रोजाना नित्य रूप से बांग्ला भगवत गीता क्लास जो शाम के समय होती है बांग्ला भाषा में, उसमें बैठते हैं। और क्यों बैठते हैं? उनको कोई उधर से ज्ञान की अपेक्षा नहीं है, लेकिन वो भागवत का, कृष्ण कथा का रसपान करना चाहते हैं। पिबत
भागवत रसमालयम, ये रस का आस्वादन करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर वर्ण और आश्रम के बारे में भीष्म पितामह बता रहे हैं। ये वर्ण कितने महत्वपूर्ण है, हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस स्ट्रक्चर ऑफ वर्णस एंड आश्रम्स। देयर आर 4 वर्णस एज वी नो, वे आर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, and there are 4 ashramas: brahmachari, grihastha, vanaprastha, sannyas. So this varnashram system is very important. Somebody may say that, oh, why I need varnashram? I can act whatever way I can. But then the purpose of living is not fulfilled. The purpose of this varnashram is to satisfy Krishna. The bottom line of varnashram dharma is person gradually realizes his spiritual identity being servant of Krishna. कोई चुनौती दे सकता है कि मैं वर्णाश्रम का पालन क्यों करूं, मैं अपने ढंग से अपना जीवन यापन कर सकता हूं, परंतु वर्णाश्रम धर्म का मतलब ही है कि हम अपने स्थान से धीरे 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 उठ करके उस आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचे जहां हम ये समझ पाए कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं। Bottom line principle of Varnashram Dharma is everything is voluntary. Varnashram Dharma was never forced. वर्णाश्रम धर्म में हर चीज स्वेच्छा से की जाती है, उसमें कभी भी किसी प्रकार का बलपूर्वक किसी के ऊपर थोपन नहीं किया जाता। इसकी पुष्टि क्या है? मान लीजिए किसी व्यक्ति का ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, लेकिन उनके अंदर ब्राह्मण की प्रवृत्ति नहीं है, तो उनको जबरदस्ती ब्राह्मण नहीं बनाया जाता है, उनकी प्रवृत्ति के अनुसार उनको कार्य दिया जाता है। Somebody is born in Brahmana's family, that doesn't mean he's forced to become a Brahman. No, according to his nature, he's given a chance to grow. Of course, when he takes birth in a particular family, he gets those facilities automatically. यद्यपि अगर किसी परिवार में उनका जन्म होता है तो उन्हें बचपन से ही वो परिवेश मिलता है जिसके कारण वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि धर्मों का पालन कर सके। एक बार एक दंपति नई नई शादी हुई थी, तो पति था बटुआ चुराने वाला, पत्नी थी गहने चुराने वाली। तो इन दोनों चोर और चोरनी की शादी हुई और बड़े प्रेम से दोनों टीम बना करके चोरी करते थे। तो उनका जब संतान हुई तो संतान के हाथ ऐसे थे, तो बड़ा उनको दुख हुआ, कह रहे हमारे संतान के हाथ ही नहीं खुल रहे हैं, बंधे हुए हाथ हैं। तो उन्होंने बहुत लोगों को दिखाया, कोई भी उसका समाधान नहीं कर पाए। तो अंततः उन्होंने एक बड़े चोर को वो खबर बताई कि देखिए आप तो हमारे सरदार हैं, चोरों के सरदार, हमारा ये संतान हुआ है, उसके हाथ ऐसे बंधे हुए हैं, तो कैसे इसका समाधान हो। तो उन्होंने बोला एक बड़ा सा हीरो का हार लेकर के आओ। तो वो चोरनी तो एक्सपर्ट थी माता, वो चुरा करके एक हार लेकर के आई, जैसे ही बच्चे के ऊपर झुलाया वैसे ही उसने अपने हाथ खोले और सब लोग विस्मय में पड़ गए, अचंभित हो गए, क्योंकि उसके हाथ में, बच्चे के हाथ में नर्स की अंगूठी थी जो पैदा होते से उसने चुराई थी। तो उसको छोड़ नहीं रहा था, इसलिए हाथ ऐसे बंधे हुए थे। जब बड़ा चीज हाथ में आया तो अंगूठी छोड़ के वो हार पे झपटता हुआ। तो कहने का अभिप्राय ये है कि माँ बाप के गुण, परिवेश से बच्चों के संस्कार बढ़ते हैं। So I was telling a story of one couple who got married. The husband was a thief and the wife was also a thief. So both were expert in robbery. So when they gave birth to a child, they were very sad to know that the child's hand were closed. They were binded to his chest. So they were very depressed, and they went to their leader, the leaders of the thieves. That leader told that bring a necklace, and that necklace, when this mother brought that necklace, suddenly this child jumped on the necklace and grabbed it. But they were astonished to see that the child was already having the ring of the nurse. After birth, he stole from that nurse. So basically, the child got this habit of robbery from birth because of father and mother's habits. So basically, the bottom line principle of Varnashram is
person gets opportunity to go ahead with the varna of his father and mother. But even if he is not able to do that, they are never forced. They are given opportunity to practice varnashram according to their situation. तो बोलने का अभिप्राय ये है कि वर्णाश्रम धर्म में यद्यपि बालक को माता पिता से जो गुण मिलते हैं उनको प्रैक्टिस करने के लिए स्वतंत्रता मिलती है, लेकिन अगर वो नहीं कर पाता है तो भी उनको बलवत पुश नहीं किया जाता, उनको बलवत थोपा नहीं जाता, उनको ये अवसर दिया जाता है कि वो अपने हिसाब से, अपने स्तर के हिसाब से कार्य करें। और इसीलिए वर्णाश्रम धर्म किसी को भी नकारता नहीं। वर्णाश्रम धर्म नेवर डिराइव्स एनीबॉडी, इट्स इंक्लूसिव, इट्स ऑल इंक्लूसिव, वो सबको साथ में लेकर के चलते हैं। और फिर उसके बाद में भीष्म पितामह राग मार्ग को बताते हैं, जिसको हम प्रवृत्ति मार्ग के नाम से जानते हैं। ये मार्ग इंद्रिय तृप्ति का मार्ग होता है और उसमें आसक्ति के बल पर व्यक्ति अपना जीवन जीता है और ब्रह्मचारी जीवन से गृहस्थ जीवन में जाते हैं। उसी के विपरीत जो वैराग्य पथ को अपनाते हैं वो ब्रह्मचारी जीवन से डायरेक्ट संन्यास आश्रम के लिए आगे बढ़ते हैं। तो दोनों ही अवसर लोगों के लिए खुले होते हैं। टू टाइप्स ऑफ ways are described of raga and vairagya. Rag is basically known as pravritti marg, the path of sense enjoyment, where person moves from brahmachari ashram to grihastha ashram and eventually he goes ahead in varnashram dharma. But in vairagya, or the path of detachment, person goes directly from brahmachari ashram to sannyas ashram. So basically varnashram dharma is prescribed to terminate this human life. वर्णाश्रम धर्म का सृष्टि ही हुई है कैसे हम इस भवबंधन से छूट जाएं। श्रील प्रभुपाद एक बार इस भौतिक जगत के बारे में बता रहे थे और इतनी दिक्कतें बता रहे थे कि ब्रह्मानंद महाराज प्रभुपाद को बोलते हैं, प्रभुपाद इस दुनिया में इतनी झंझट है तो इसमें आए ही क्यों? प्रभुपाद बोले, मिल गया तुमको, सही पॉइंट मिल गया, जो मैं बोलना चाहता था यही बताना चाहता था कि इस दुनिया में आने की कोई जरूरत नहीं है। Prabhupada was one time telling the problems in material world, and Brahmananda Maharaj told Prabhupada, if there are so many problems in this material world, why we should come in this material world? Prabhupada said, yes, you got the point. Basically, we don't have to come to this material world. We have to go back to Krishna. So Bhishma Dev advised so many wonderful qualities. These qualities are very important. Prabhupada said all human beings should have these 9 qualifications. He is not talking about even devotees. All human beings should have these 9 qualifications. विष्णुदेव बहुत सारे सुंदर यहाँ पर शिक्षाएं दे रहे हैं और प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये मानव समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो अवसर है इन शिक्षाओं को पालन करने के लिए। भक्त के बारे में ही बात नहीं कर रहे हैं, मानव बनने के लिए ही ये शिक्षाएं बहुत जरूरी है। पहली है नॉट टू बिकम एंग्री, हम क्रोध के वश में ना आए। ये बहुत ही कठिन बात है। इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग टू प्रैक्टिस, बट स्टिल a human being should practice not to be carried away by anger. Like Lord Shri Krishna, when he was the prince of Dwarka, a Brahmana comes in the middle of court and challenges Krishna. What kind of ruler are you? In your presence, under your rule, children are dying before his father. Now, if a child dies before his father, can we complain to BJP or Congress or any other, I don't know what kind of government structure is there in Kanhaiya Desh, but can we challenge the government that, oh, the son died before father? But people challenged Krishna like that, and Krishna never told them that time, oh, this is Dukhalayam, after all, why are you coming to me? But no, Krishna took that as a challenge and he went and reclaimed the died son of the Brahmana. श्रीमद् भागवत में इस सुंदर उदाहरण दिया गया है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका के युवराज थे और उस समय पर एक ब्राह्मण आकर के चुनौती देते हैं कि आपके साम्राज्य में
आपकी छत्र छाया में ये कैसी विषम परिस्थिति आ गई है कि बच्चों की मृत्यु पहले हो रही है पिता से। उस ब्राह्मण के बच्चों की मृत्यु हो गई थी। तो क्या हम अभी के सरकार से, गवर्नमेंट से ये चुनौती दे सकते हैं कि किसी पुत्र की मृत्यु पिता से पहले हो गई हो? गवर्नमेंट कभी भी नहीं मानेगी। सो कृष्ण उस ब्राह्मण को समझा सकते थे कि भैया ये दुखालय शाश्वत है, दुख का सागर है, यहाँ तो ये सब चलता ही रहता है। लेकिन नहीं, कृष्ण बिना क्रोधित हुए उस चुनौती को एक अवसर प्राप्त करके गए और ब्राह्मण के बालकों को महाविष्णु से छुड़ाया। तो कहने का अभिप्राय है, a human being should not become angry. Second is not to lie. झूठ नहीं बोलना चाहिए। Now this is not moral science class. ये एक सामाजिक शिष्टाचार की क्लास नहीं है। फिर भी these things are important because many a times we tell lies wherever it's not necessary. Many a times it becomes a part of our habit, part of our personality to speak lies, which is not good. Dharma is standing on the leg of Satya, the leg of truthfulness. So we should not break that leg. हम लोग कई बार झूठ बोलने में इतने निपुण हो जाते हैं कि हमारे व्यक्तित्व का ही एक अंश बन जाता है झूठ बोलना। तो जहाँ प्रयोजन ना हो, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। और उस परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण हमारी मदद करते हैं। In that situation, Krishna helps us. I remember when I was young in school, first time we were observing Nirjala Ekadashi, and we were very fearful that our parents will not support it, because to do Nirjala Ekadashi, parents will naturally not support it. So we were fearful. But that very day, we heard this lecture of His Holiness Radhanath Swami Maharaj, where he was telling the spirit of fasting. He was telling, if you are fasting and you're doing whole day prajalpa, prajalpa also includes telling lies. What is the use of your fasting? So in the evening, my mother called and she asked, so did you fast today? And I said, yes, I fasted today. And that was the day I was astonished. She didn't become angry, but she also started to observe Ekadashi. मेरे एक इस कक्षा के दिनों की बात है, हम लोग पहली बार निर्जल एकादशी व्रत पालन करने का प्रयास कर रहे थे और हमें संकोच था कि हमारे माता पिता अपना समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि निर्जल एकादशी करना, और उस समय हम कोटा में पढ़ाई कर रहे थे, गर्मियों का समय भी था। लेकिन उसी दिन हमने श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज के प्रवचन सुना और उसमें महाराज बता रहे थे कि आपके व्रत तप का क्या अर्थ है यदि आप पूरा दिन प्रजल्प करें, और उस प्रजल्प में ही झूठ बोलना भी आता है। तो हमने जब शाम को हमारी माता से बात की, उन्होंने बोला कि क्या आप व्रत कर रहे हैं? बोला हाँ, हम व्रत कर रहे हैं निर्जल एकादशी। तो उन्होंने नाराज नहीं हुए और हमारे आश्चर्य की बात थी कि उन्होंने भी उस दिन से एकादशी शुरू कर दी। तो wherever it is not very much necessary, we should not tell lie. Only for Krishna's service, like Yudhishthir told, that is only allowed. Otherwise, we should tell truth. इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए कि जहाँ जरूरी, बहुत ही ज्यादा आवश्यकता ना हो, वहाँ झूठ ना बोला जाए। जैसे कृष्ण की सेवा में युधिष्ठिर महाराज ने एक झूठ बोला, उसी प्रकार से अगर स्थिति हो तो बात अलग है। क्योंकि इस पूरी दुनिया में हर व्यक्ति के ऊपर हमें डाउट है। प्रभुपाद बोलते थे एयरपोर्ट पे चेकिंग होती है, इसका मतलब क्या है? हर व्यक्ति को एक आतंकवादी के रूप से देखा जा रहा है, नहीं तो हर व्यक्ति की चेकिंग क्यों हो रही? Prabhupada used to tell that why airports are screening everybody, because everybody is doubted of being a terrorist. This is world situation. So if we devotees will not stand on the path of truth, who will teach the world? और अगर भक्त लोग सत्य की राह पर नहीं चलेंगे तो इस दुनिया को कौन सिखाएंगे? इसलिए भीष्म पितामह यहाँ बोल रहे हैं सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। Third point is to equally distribute wealth. एक समान भाव से धन का वितरण हो। ये हम महाराज शिवी के उदाहरण से सीखते हैं
महाराज शिवी ने जैसे एक कबूतर को भी अपनी प्रजा समान प्रेम दिया और उनको अपने शरीर के अंग का दान देकर के उनकी रक्षा की। ये कहानी आप सबने बचपन में सुनी होगी। महाराज शिवी की कक्ष में एक कबूतर और एक कौवा उड़ करके आते हैं और उन दोनों के बीच में बड़ा ही विवाद होता है, और जिसको शिवी महाराज अपने अंग के मांस को दे करके उस गिद्ध को संतुष्ट करते हैं और उस कबूतर की रक्षा करते हैं। So this story is very famous of Maharaj Shivi, where an eagle and pigeon comes to this court, and this pigeon asks for his life, and the eagle also asks for his life because eagle's food is pigeon. So Maharaj Shivi gives flesh of his own body to satisfy eagle and save the life of pigeon. So this way they are equally distributing the opulence among the subjects. Fourth point is to forgive. क्षमा करना, ये चतुर्थ शिक्षा है। दूसरों को क्षमा करना। गलतियां सभी लोगों से होती हैं, लेकिन क्षमा करना एक महान व्यक्तित्व की पहचान है। जैसे कि महाराज अम्बरीश का उदाहरण है। महाराज अम्बरीश को दुर्वासा मुनि ने मृत्यु करने के लिए, उनको मारने के लिए प्रयास किया, लेकिन महाराज अम्बरीश ने उनको क्षमा किया। So Maharaj Amrish is a wonderful example where Durvasa Muni tried to kill Amrish, but Amrish in return was not at all perturbed, not at all angry. He forgiven Durvasa Muni. Another example is Yudhishthira Maharaj himself. युधिष्ठिर महाराज स्वयं ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो धृतराष्ट्र ने पूरा जीवन पांडवों के प्रति प्रेम न रख करके उनके साथ अन्याय किया, और महाभारत के युद्ध के बाद धृतराष्ट्र भीम को गले लगा करके मारना चाहते थे अपने बल से। ये सारी कहानी हमको मालूम है। फिर भी युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र को पिता कह करके संबोधित करते हैं, उन्हें सेवा करते हैं, और धृतराष्ट्र को जब विदुर वन में ले जाते हैं तो युधिष्ठिर महाराज फूट फूट करके रोते हैं कि मेरी गलतियों के कारण मेरे पिता समान धृतराष्ट्र महाराज चले गए। So this is Yudhishthira Maharaj, who is completely Ajat Shatru. His enemies are never born. दूसरा उदाहरण युधिष्ठिर महाराज स्वयं है, जहाँ धृतराष्ट्र ने बचपन से उन्हें मारने का प्रयास किया, उनके साथ अन्याय किया, और महाभारत युद्ध के बाद भी उनको गले लगा करके मारने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज ने धृतराष्ट्र को पिता समान सम्मान किया। Fifth point is to beget children only by one's legitimate wife. फिर पांचवा पॉइंट है कि कैसे केवल अपनी धर्म पत्नी से ही बच्चों का संसार करना। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि कैसे कृष्ण भावनामृत में ब्रह्मचर्य का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। It's very important to observe brahmacharya in Krishna consciousness movement. Prabhupada used to tell in Krishna consciousness, everybody is a brahmachari. A brahmachari is a brahmachari, a sannyasi is a brahmachari, a vanaprastha is a brahmachari, and a grihastha also a brahmachari. Devotees asked Prabhupada, understood about the three ashramas, but how come grihasthas are brahmachari? Prabhupada said, when grihasthas only come together for procreation, that is brahmacharya. That is as good as brahmacharya. So, प्रभुपाद बताते थे कि कैसे कृष्ण भावनामृत में सभी लोग ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी ब्रह्मचारी हैं, वानप्रस्थ ब्रह्मचारी हैं, और गृहस्थ भी ब्रह्मचारी हैं। तो भक्त लोग आश्चर्य में पड़ गए, प्रभुपाद बाकी तीन वर्ण का तो समझ में आता है, बाकी तीन आश्रम का तो समझ में आता है, लेकिन ये गृहस्थ कैसे ब्रह्मचारी है? प्रभुपाद बोलते हैं, यदि एक दंपति केवल संतान उत्पत्ति के लिए पास में आते हैं तो वो लोग ब्रह्मचारी हैं। उस प्रकार से प्रभुपाद बताते हैं कि सभी लोग वास्तव में ब्रह्मचारी हैं। तो उसी समय पे एक शिष्य बोलता है कि प्रभुपाद, अगर आप सबको ब्रह्मचारी, so what will happen to this world? If everybody will become brahmachari, how this world will go forward? What will happen to this world? Prabhupada said, go let this
doomed world go to hell, let this whole story stop, that is good for the souls. प्रभुपाद बोलते हैं इस नरक रूपी संसार को बंद ही हो जाने दो, सभी ब्रह्मचारी बन जाएंगे और सभी लोग भगवत धाम चले जाएंगे, इस संसार को बंद ही हो जाने दो। तो उस तरह प्रभुपाद बोलते थे। लेकिन प्रभुपाद ने बताया कैसे एक गृहस्थ परिवार जो कृष्ण भावनामृत की शिक्षाओं का पालन करते हैं वो भी ब्रह्मचारी। तो उस प्रकार से यहाँ पर बताया टू beget चिल्ड्रन ओनली बाय वंस लेजिटिमेट वाइफ। छठवा बताया टू बी प्योर इन माइंड इन हाइजीनिक इन बॉडी, अपने मन और शरीर दोनों से स्वच्छ रहना। सातवां बताया है किसी के प्रति द्वेष भाव ना रखना, नॉट टू बी इनिमिकल टुवर्ड एनीवन। आठवां बताया है टू बी सिंपल, साधारण जीवन यापन करना। And 9th one is to support servants or subordinates, अपने अनुयायियों को और सेवकों को संरक्षण देना, समर्थन देना। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद ने ये वर्ण और आश्रम की शिक्षाओं को अपने तात्पर्य में विश्लेषण किया है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया। हम लोग अगले श्लोक की तरफ पढ़ते हैं। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भागवत धर्मान समासभ्यास योगता। He then explained by divisions acts of charity, the pragmatic activities of a king and activities for salvation. Then he described the duties of women and devotees both briefly and extensively. So यहाँ पर अभी बता रहे हैं सुत गोस्वामी कैसे भीष्म पितामह ने संक्षिप्त रूप से और विस्तृत रूप से कई धर्मों का विश्लेषण किया, जैसे कि दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भागवत धर्म। इन 5 धर्मों का विश्लेषण करा भीष्म पितामह ने। तो दान धर्म क्या है? What is this दान धर्म? दान धर्म is a charity which has to be given by everybody to the Supreme Personality of Godhead. ये दान धर्म का अर्थ है हर जीवात्मा को भगवान के प्रयोजन के लिए कुछ ना कुछ दान देना चाहिए। If he is ब्रह्मचारी, he should give his intelligence. एक ब्रह्मचारी को अपने बुद्धि से दान करना चाहिए। एक गृहस्थ should give charity by his hard-earned money. एक गृहस्थ को अपने आजीविका से उपार्जित धन का दान करना चाहिए। One time a sadhu was going on bhiksha and he was asking bhiksha in different places. And there was one particular house who never gave any bhiksha. This lady in this house was so stingy, so miser. She never gave any donation, any charity to anybody. But this sadhu used to go every day to her house. And this lady was so angry. Every day she used to tell so many bad words to this sadhu. But again, every day this sadhu used to come. And one day, what this lady did, she took some ashes from her stove and she put in the bowl of sadhu. And this sadhu's bowl was having some bhiksha, some rice, dal, everything got spoiled by that ashes. And the sadhu became so happy. Sadhu was not angry, he became happy. He said, "Very good, thank you so much." And this lady was surprised. I have spoiled all whatever you have begged from so many houses. I spoiled it by putting ashes in your bowl. Then why are you saying me thank you? The sadhu said, "Today you learned giving. At least you gave ashes. Today you learned the dharma of giving. Slowly you will learn what to give also." एक बार एक साधु भिक्षा करने के लिए जा रहे थे और वो देखते हैं कि एक घर में एक महिला है, ये माता बहुत ही ज्यादा कंजूस है, ये कभी किसी को कुछ दान नहीं देते हैं। तो उनके घर में ये साधु रोज जाया करते थे और ये माता उन्हें अपशब्द बोलती, उन्हें तिरस्कृत करके भगा देती। एक दिन ये माता को बहुत क्रोध आया और ये साधु के जो भिक्षा पात्र था उसके अंदर कई घरों से जो उन्होंने भिक्षा ली थी, चावल दाल सब कुछ था, उसके अंदर उन्होंने चूल्हे से उठा करके राख डाल दी
और आश्चर्य की बात यह है कि ये साधु नाराज नहीं हुए पर खुश हो गए। तो ये माता पूछती हैं कि आपको तो क्रोधित होना चाहिए, मैंने आपका पूरा भोजन नष्ट कर दिया राख डाल करके, आप खुश क्यों हो रहे हैं? तो साधु बोलता है, आज आपने देना सीखा है, आज आपने दान करना सीखा है, आप धीरे धीरे ये भी सीख जाएंगे कि दान में क्या देना चाहिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, that when a person in his brahmachari life, in his student life, he learns ईशावास्यम idam sarvam, that everything belongs to Krishna. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मचारी जीवन में, छात्र जीवन में व्यक्ति ये सीखे कि सब कुछ कृष्ण का है। जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने बाल लीला कर रहे थे, एक बार उन्हें भूख लगी और उन्होंने एक आम खा लिया। जब वो आम खा रहे थे तो उनके पिता सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर आए और उन्होंने बोला कि क्या तुमने ये आम को भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती, विमला प्रसाद बोलते नहीं, मैंने भोग नहीं लगाया। तो उन्होंने बड़े प्रेम से समझाया कि देखिए, हम भगवान को अर्पित किए बिना खा रहे हैं, ये पाप है, ये चोरी है, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का है। और देखिए, एक बाल्य अवस्था में जो शिक्षा प्राप्त की भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने, पूरे जीवन उन्होंने आम नहीं खाया। जब भी उनके शिष्य आम लेकर के आते थे, वो बोलते थे नहीं, मैं पापी हूँ, मैं अपराधी हूँ, मैंने कृष्ण को बिना भोग लगा करके आम खाया था बचपन में। तो ये शिक्षाएं बचपन से लेना बहुत जरूरी है। These teachings are very important to be assimilated since childhood, because when we take some teachings in childhood, they have long-lasting impressions. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, when he was a child, he happened to eat a mango one day, and Srila Bhaktivinoda Thakur came and asked that Bimala Prasad, did you offer this mango to Krishna? Bimala Prasad said no. Bhaktivinoda Thakur very lovingly explained him that how when we eat for our own sense gratification, that is sin. Everything belongs to Krishna. And such a long-lasting impression was left on the Bhakti Siddhanta Saraswati's life, that in whole life he never ate mangoes. Whenever disciples used to offer him mangoes, Bhaktisiddhanta Saraswati used to say that no, I am an offender in Krishna's lotus feet. So that is very important, that we learn everything belongs to Krishna. And then when such brahmachari becomes a grihastha, he learns to give charity. जब ऐसी अवस्था में व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है इस ब्रह्मचारी ट्रेनिंग के बाद, तब वो समझता है कि दान की क्या महत्व होता है। इसलिए बोला जाता है कि गृहस्थ जीवन में 50% दान देना चाहिए। उसका मतलब ही है कि हम जब दान दें तो हमें थोड़ा सा दर्द हो। दान तब तक सार्थक नहीं है जब तक देने में दर्द ना हो, तब तक दर्द दान का महत्व नहीं है। One should give charity to the point you feel little pain in heart, something is going. Until unless there is no point in that. Therefore, it's still 50% of income. Because it pains, hard-earned money, it's going. Then person realizes, no, everything belongs to Krishna. So that realization is important. Because Krishna doesn't see how much we give, but he sees how much we have kept for ourselves. भगवान श्री कृष्ण ये नहीं देखते कि हम कितना दान दे रहे हैं, वो ये देखते हैं कि हमने अपने लिए कितना रख रखा है। तो ये आसक्ति को छुड़ाना है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में बोल रहे हैं, इफ यू हैव नथिंग टू ऑफर, इट्स नॉट दैट ओनली मनी, यद करोषि यदस्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुस्व मदर्पणम। Whatever you do, whatever you eat, whatever religious practices you do, whatever austerities you do, offer it for me, do for me. This is Krishna consciousness. आप जो कुछ खाते हो, जो कुछ करते हो, जो कुछ यज्ञ करते हो, जो कुछ तपस्या करते हो, कृष्ण के लिए करो। यही कृष्ण भावनामृत है। और हम लोग भीष्म पितामह की शिक्षाओं में भी देखेंगे, भीष्म पितामह कृष्ण को अपनी मति अर्पित करेंगे, वही एक उपहार कृष्ण के चरणों में देंगे। भीष्म पितामह will offer his consciousness in Krishna's lotus feet as a gift, as a charity in Krishna's lotus feet for his pleasure. So this is Dana Dharma. Second is Raja Dharma. Raja Dharma means how a emperor should be Krishna conscious. कैसे एक राजा को कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। और इसी के लिए प्रशिक्षण जरूरी है।
Training is important for ruling any kingdom. Even Lord Sri Ramchandra, Sri Krishna Chandra, everybody took training before they ruled any kingdom. किसी साम्राज्य को अपनाने के पहले रामचंद्र ने, कृष्णचंद्र ने, इन सभी ने भी गुरु के आश्रम में प्रशिक्षण लिया था राजधर्म के बारे में। लेकिन आजकल वो प्रशिक्षण नहीं है। शादी करने के लिए भारतवर्ष में विवाह करने के लिए 21 साल उम्र जरूरी है और वोट देने के लिए 18 साल उम्र जरूरी है। इसका मतलब है देश चलाने से ज्यादा कठिन है घर चलाना। इन इंडिया द कंपल्सरी एज फॉर मैरिंग इज 21 years, but to give vote he should be only 18 years old. That means it is easier to run government than running home. That is not good. A king is representative of Supreme Personality of God. It's a very big responsibility. So the training aspect is very, very important when it comes to Raj Dharma. इसलिए एक राजा भगवान का प्रतिनिधि होते हैं और इस दायित्व को निभाने के लिए राज धर्म सीखना बहुत जरूरी है। अगला धर्म भीष्म पितामह सिखाते हैं मोक्ष धर्म। ये बहुत जरूरी है। मोक्ष धर्म का अनुसरण करना, कैसे अपने काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर्य से ऊपर उठ कर कृष्ण भावनामृत में संलग्न होना। How to engage oneself, going above the principles of lust, anger, awful desires, avarice, bewilderment. Prabhupada tells so many wonderful definitions in this purport. I'll not go in detail because we are already running late. But Prabhupada इन तात्पर्य बहुत सुंदर परिभाषाएं बताते हैं कैसे हम हर अनर्थ को जीत सकते हैं। To get freedom from anger, one should learn to forgive. क्रोध से छुटकारा प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर दूसरों को माफ करने की शक्ति होना चाहिए। When Bhima was poisoned and ultimately he was saved by the Naglok, residents of Naglok, and he came back to Hastinapur, Yudhishthir was the first person to ask him what happened. And Bhima told that, my dear brother, Duryodhan poisoned me. And this is how I fell. And then the story continued. First thing Yudhishthir told Bhima was, don't tell this to anyone. Forgive. Duryodhan is your brother. Forgive him. Otherwise, what is the difference between you and Duryodhan? This was Yudhishthir. जब भीम को विष पिलाया गया था और उनको नागलोक के नागों ने रक्षा कर करके वापस हस्तिनापुर भेजा था, तो युधिष्ठिर पहले व्यक्ति थे भीम से मिलने के लिए। तो भीम ने युधिष्ठिर को बताया कि कैसे दुर्योधन ने उन्हें विष दिया था। तो भीम ने युधिष्ठिर से शिक्षा प्राप्त की। युधिष्ठिर ने बोला कि अब इस बात को किसी से मत कहना, क्योंकि दुर्योधन तुम्हारा भाई है, और यदि तुम भी उनके प्रति द्वेष भाव रखोगे तो तुम्हारे और दुर्योधन के बीच में अंतर क्या रह जाएगा। So many wonderful teachings are given by Bhishma Pitama. By spiritual culture one can be able to conquer sleep. आध्यात्मिक प्रशिक्षण से निद्रा के ऊपर जय प्राप्त की जा सकती है। इस तरह बहुत सुंदर उदाहरणों से, परिभाषाओं से, बहुत सारे अनर्थों से कैसे लड़ना है इस तात्पर्य में बताया गया है। और उसके बाद स्त्री धर्म के बारे में बताया गया। What is स्त्री धर्म? What is the duty of a woman, of a lady? And Prabhupada writes such a powerful statement. People tell that Prabhupada was telling women are less intelligent, this and that, but they should read this purport. Prabhupada told such a powerful statement. Prabhupada said, women are power of inspiration for men. प्रभुपाद को लोग कई बार बोलते हैं प्रभुपाद स्त्रियों को पसंद नहीं करते थे, प्रभुपाद स्त्रियों के बारे में ऐसा लिखते थे, वैसा लिखते थे, लेकिन उनको ये तात्पर्य पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिख रहे हैं कि कैसे स्त्रियां पुरुषों के लिए एक प्रेरणा की शक्ति होती है। उनकी प्रेरणा आती है स्त्रियों से। हमारे वैदिक संस्कृति में जब ब्रह्मचारी लोग भिक्षा मांगने के लिए जाते थे तो किससे भिक्षा मांगते थे? माताओं से भिक्षा मांगते थे। माते भिक्षाम देहि, भद्रे भिक्षाम देहि।
ये स्तर वर्णाश्रम धर्म ने माताओं को दिया है। और आजकल बोला जाता है इक्वल राइट्स, तो वास्तव में माताओं को जहां वर्णाश्रम धर्म ने बिठाया है, पुरुषों से ऊपर बिठाया है, और उनको खींच करके हम नीचे लाना चाहते हैं पुरुषों के स्तर पे। ये इक्वालिटी में माताओं का नुकसान है। एक्चुअली पीपल स्पीक अबाउट इक्वालिटी, but our varnashram dharma has placed women superior position to the men. When brahmacharis go for bhiksha, they address ladies as their mothers, as the civilized ladies, Bhadre Bhiksham Dehi. And why we want to pull them down to the level of men? Guru Maharaj, His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj, one time I remember, we were in Jagannath Puri and a new couple came to meet Maharaj. And this new married couple was taking blessings. And then Maharaj told the wife, Maharaj told, let your husband work and you spend, because you are the boss, he is the employee. गुरु महाराज ने उनको बोला था, एक नया दंपति विवाह के बाद उनसे आशीर्वाद लेने आए थे जगन्नाथपुरी में, और गुरु महाराज ने पत्नी को बोला कि तुम्हारे पति को काम करने दो और तुम खर्चा करो, क्योंकि तुम बॉस हो, तुम मालिक हो, और ये एम्प्लॉय है, ये वर्कर है। तो उसी प्रकार का स्तर एक माता को दिया गया है हमारे वर्णाश्रम में। लेकिन प्रभुपाद यहाँ पर एक चेतावनी माताओं को दे रहे हैं कि माताओं का धन है मर्यादा। अगर उनके अंदर से मर्यादा चली जाएगी तो समाज में स्थिति बिगड़ जाएगी, वर्ण संकर हो जाएंगे। So Prabhupada specifically wants one thing for women, that shyness is important aspect for women. If that shyness goes away, maryada goes away, then there will be havoc in the society. So diamonds are not found on the streets. Imagine if diamonds are there all over the street, there will be no value of the diamonds. In the same way, women are very respectful part of our society, given that importance. Next dharma is Bhagavad dharma. अगला और सबसे उत्कृष्ट धर्म जो भीष्म पितामह बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, वह भागवत धर्म। भागवत धर्म सुपरसीड्स ऑल अदर धर्म्स। ये भागवत धर्म बाकी सभी धर्मों में उत्कृष्ट है। तो प्रभुपाद इसमें बहुत ही सहज रूप से बता रहे हैं कि भागवत धर्म का अर्थ क्या है। भागवत धर्म का अर्थ है हमारे घर में हम ठाकुर को बैठाएं, हम राधा कृष्ण गौर निताई जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इन लोगों के विग्रहों को स्थापित करें और घर को एक मंदिर के रूप से सहेजें, भक्तों की सेवा करें, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करें, हरिनाम का जप करें, और इसी से हम भागवत धर्म का पालन करेंगे। So Prabhupada simplified Bhagavad Dharma in very simple statements. He told what is Bhagavad Dharma? That we establish Lord in our heart, in our house, worshipping the deity at home, serving the devotees, hearing Srimad Bhagavatam, reciting in holy place, chanting the holy name. These are some simple ways of practicing Bhagavad Dharma. Or Bhishma, as the perfect guide, is telling Yudhishthira Maharaj these things, because Bhishma is a perfect grandfather. भीष्म पितामह एक समृद्ध, एक आध्यात्मिक रूप से निपुण व्यक्ति हैं, इसलिए अपने पोतों को, अपने पुत्रों को ये सब ज्ञान दे पा रहे हैं। अगला श्लोक, हमारे पास समय की कमी है तो अब हम संक्षिप्त रूप में आगे के 3 श्लोकों को पढ़ेंगे। धर्मार्थ काम मोक्षंश्च सहोपायं यथा मुने नाना ख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। Then he described the occupational duties of different orders and statuses of life, citing instances from history, for he was himself well acquainted with truth. यहाँ पर भीष्म पितामह बता रहे हैं कैसे अलग अलग वर्ण और आश्रमों से ऊपर आकर के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में बता रहे हैं, और केवल रूखा सूखा ज्ञान नहीं दे रहे हैं, साथ में इतिहास से उदाहरण दे करके समझा रहे हैं।
Prabhupada used to tell that if you want to explain any subject matter, you should tell examples. प्रभुपाद बोलते थे अगर आपको किसी विषय वस्तु को अच्छे से समझाना है तो उदाहरण बताइए, और सबसे अच्छे उदाहरण होते हैं इतिहास. The best example is history because it is real examples, क्योंकि वो वास्तविक उदाहरण है. व्यक्तियों ने उस संघर्षों को जिया है, उस अपने जीवन में उन संघर्षों से लड़ाई करके या तो वो हारे हैं या जीते हैं. The histories are the best examples to quote. And examples should be so simple and easy to digest that people can relate the subject matter very easily. जो उदाहरण हम देते हैं उनको बहुत ही साधारण और बहुत ही सहज रूप से बताना चाहिए, जिससे बहुत ही सरलता से व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान को समझ जाए. One time when Prabhupada was preaching in New York, some hippies challenged Prabhupada, what exactly is Krishna consciousness? How much fun is in Krishna consciousness? Prabhupada said, Krishna consciousness is such an ecstatic process. It is like a room filled with LSD. So Prabhupada को एक बार कुछ हिप्पियों ने चुनौती दी, प्रभुपाद क्या मजा है कृष्ण भावनामृत में. प्रभुपाद उनको उन्हीं की भाषा में समझाते हैं. कृष्ण भावनामृत ऐसा है मानो एक पूरा कमरा LSD ड्रग से भरा हो. क्योंकि वो हिप्पी LSD ड्रग जानते थे, प्रभुपाद उसी का उदाहरण दे रहे हैं. Because they knew LSD, Prabhupada gave example of LSD only. So another time somebody asked Prabhupada, how do you know LSD is bad? Because you never tasted it, you never tried it. So how do you know LSD is bad? तो प्रभुपाद से एक बार किसी ने चुनौती दी कि प्रभुपाद आपको कैसे मालूम कि LSD ड्रग बेकार है, खराब है? आपने तो कभी चखा नहीं, आपने तो कभी इसका नशा किया नहीं, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि ये LSD खराब? तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, one doesn't need to taste stool to know that stool is bad. प्रभुपाद ने उदाहरण दिया कि कोई वृष्टा को चख करके नहीं देखता है ये बताने के लिए कि वृष्टा खराब है. So such simple examples Prabhupada used to give so that difficult philosophy also get assimilated very easily. तो प्रभुपाद ऐसे बहुत ही सरल उदाहरण दिया करते थे जिससे कठिन से कठिन विषय वस्तु बहुत ही सरलता से व्यक्ति समझ जाए. उसी तरह यहाँ भीष्म पितामह इतिहास से उदाहरण देकर के समझा रहे हैं. अगला श्लोक, धर्मं प्रवदतस्तस्य सकाल प्रत्युपास्थिता या योगिंश्छन्द मृत्यु वंचितस्तुत्तरायण. While Bhishmadev was describing occupational duties, the sun's course ran into the northern hemisphere. This period is desired by mystics who die at their own will. तो जब भीष्म पितामह इस तरह बता रहे थे, सूर्य उत्तरायण में आ गए और ये उत्तरायण का समय योगी अपना शरीर छोड़ते हैं, और इस अवस्था को उत्तरायण की स्थिति में योगी लोग बहुत पसंद करते हैं अपनी इच्छा मृत्यु प्राप्त करने के लिए. सो लाइफ इज ऑल अबाउट कॉन्करिंग डेथ. ये जीवन ही मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए. People are fearful of death because there are so many attachments. They are fearful of losing those attachments. Therefore, they are fearful of death. But a yogi, a Mahabhagavat, a Mahajan like Bhishma Pitama doesn't have any material attachment. Therefore, he was happy that now finally the time came when he will be eternally united back in the association of Krishna's service. लोगों के अंदर मृत्यु का भय इसलिए होता है क्योंकि उनके जीवन में बहुत सारी आसक्तियां होती हैं और उन आसक्तियों को खोने का उनके अंदर डर होता है. लेकिन भीष्म पितामह के जीवन में ऐसा कोई डर नहीं था. वो खुश थे कि अभी वो समय आ गया है. नेक्स्ट वर्स, तदोपसंहृत्य गिरा सहस्रनेर विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे कृष्णे लसत्पीत पटे चतुर्भुजे पुरा स्थिते मिलिता दृग व्यधारयत. Thereupon that men who spoke on different subjects with thousands of meanings and who fought on thousands of battlefields and protected thousands of men stopped speaking, and being completely freed from all bondage
withdrew his mind from everything else and fixed his wide open eyes upon the original Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, who stood before him four-handed, dressed in yellow garments that glittered and shined. यहाँ पर बता रहे हैं कि जो व्यक्ति ने हजारों ऐसे विषयों पर प्रवचन दिए, उनका अर्थ समझाया, हजारों युद्धों में जिसने विजय प्राप्त की, हजारों व्यक्तियों का जिसने जीवन सुरक्षित किया, आज वो व्यक्ति इतने बड़े भाषण देने के बाद शांत हो गया और एकदम शांत मन की स्थिति में उन्होंने बाह्य रूप से अपने आप की इंद्रियों को पूरा समेट लिया और अपनी आंखों को बढ़ा करके एक टकटकी लगा करके भगवान श्री कृष्ण को दर्शन कर रहे हैं, जो कि उनके सामने चतुर्भुज रूप में पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए खड़े हुए। तो यही बताता है कि किस तरह भीष्म पितामह की आसक्ति भगवान श्री कृष्ण छोड़ करके और किसी चीज में नहीं थी। जिस भी परिस्थिति में हम अंतिम समय में अपनी आसक्ति प्रदर्शित करेंगे, वही हमारा अगला जीवन होगा। The subject matter which attracts the dying man becomes the beginning of his next life. One time Tukaram Maharaj was giving such nice presentation in a temple. He was singing nice songs for pleasure of Krishna. And there were many people. Temple was full. But as the night was progressing, people were going back to their homes. So Tukaram Maharaj was singing for hours. And everybody left. Only one person was sitting. Tukaram Maharaj became very happy. Wow, this man has such attachment for Krishna Katha. I am singing for so many hours. And this only one person is sitting, everybody else left. So Tukaram Maharaj asked him, wow, what a wonderful attachment you got. How you got such attachment to Krishna Katha? That person said, I don't have any attachment to Krishna Katha. The blanket on which you are sitting is mine. Once you finish, I have to take that blanket back to my home. This is the condition of material world. The attachment is so strong, we can't think about Krishna. इस तरह आसक्ति हमको जकड़ लेती है इस भौतिक संसार में कि हम कृष्ण के बारे में सोच नहीं पाते। तुकाराम महाराज जो आज से 500 साल पहले महाराष्ट्र में जिनका जन्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे, तो एक मंदिर में भजन कर रहे थे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई, लोग जाते गए और अंत में एक व्यक्ति बैठा था। तो तुकाराम महाराज ने उनको पूछा, अरे तुम्हारी इतनी आसक्ति है, सभी लोग घर चले गए, अकेले तुम बैठ के भजन सुन रहे हो? तो उसने बोला, आसक्ति कुछ नहीं है, जो कंबल पे आप बैठे हैं वो मेरा कंबल है, तो आप कंप्लीट करेंगे तब हम अपना कंबल घर लेकर के जाएंगे। तो भीष्म पितामह was not attached materially, he was only attached to Krishna. Therefore when the perfect time came, he just focused on Krishna. भीष्म पितामह उस तरह आसक्त नहीं थे, केवल कृष्ण के प्रति आसक्त थे। Srila Prabhupada was also like that. Srila Prabhupada, who in 10 years of time preached Krishna consciousness all over the world, he made devotees all over the world, opened 108 temples. On his last time, in his deathbed, when devotees asked, Prabhupada, what do you want? Prabhupada said, Kuch ichha nahi. I don't want anything. I am satisfied. This is a devotee, no attachments. Srila Prabhupada भी उसके उदाहरण है। जिस श्रील प्रभुपाद ने विश्वव्यापी आंदोलन का निर्माण किया, हजारों भक्त बनाए, 108 मंदिर बनाए, इतनी बड़ी संस्था को चलाने वाला व्यक्ति जब अपने अंतिम क्षणों में है, भक्तों ने पूछा, प्रभुपाद आपकी कोई अंतिम इच्छा है? प्रभुपाद ने बोला, कुछ इच्छा नहीं है। प्रभुपाद पूर्ण रूप से संतुष्ट थे कि भगवान उनको अगली सेवा में नियोजित करने वाले। उसी तरह भीष्म पितामह कृष्ण के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं। विशुद्धया धरणया हतशुभस तदीक्षयै वासुगत युद्ध श्रमा निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रमस तुष्टावजन्यम विसृजन जनार्दनम। By pure meditation looking at Shri Krishna, he at once was freed from all material inauspiciousness and was relieved from all bodily pains caused by arrow wounds. Thus, all external activities of his senses at once stopped,
and he prayed transcendentally to the controller of all living beings while quitting his material body. So उस शुद्ध ध्यान में भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखते हुए, सारी अपनी भौतिक इंद्रियों को समेटते हुए भीष्म पितामह एकटक भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ध्यान कर रहे हैं, और उनके जितने भी शारीरिक कष्ट थे जो कि बाणशैया पे लेटने के कारण थे, वो सारे क्षय हो गए। और इस अवस्था में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को स्तुति करना प्रारंभ किया। So this is the essence of bhakti, where a devotee takes ultimate shelter and refuge in the lotus feet of Krishna. ये भक्ति का सारांश है, जहाँ भक्त अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में सुरक्षित महसूस करता है। And now Bhishma will offer his heartfelt loving prayers in Krishna's lotus feet. और अभी भीष्म पितामह अपनी प्रेममयी प्रार्थनाएं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करेंगे। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। भीष्म पितामह की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। आपने बहुत सुंदर रूप से हमें भीष्म पितामह की जो शिक्षाएं हैं वो हमको आपके श्लोकों के माध्यम से जो उन्होंने बताया। आज कई धर्मों के बारे में, वर्णाश्रम धर्म, राग और वैराग्य धर्म, फिर आपने दान धर्म, राज धर्म, स्त्री धर्म और भागवत धर्म बहुत सुंदर रूप से आप समझाया प्रभु जी। हम सब बहुत ही आभारी हैं आपके। And together also you also informed us like how this day is very special. कैसे ये दिवस बहुत आज जो है वो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज श्री प्रभुपाद जी को टीओपी मंदिर में वहां पर लाया गया है। तो हम सब बहुत ही आभारी है प्रभु आपको इतने सुंदर क्लास के लिए और इतने सुंदर से हमको समझाने के लिए। और आपके पास समय है प्रभु, so can we take some question प्रभु if you have some time? Yeah, if there is any questions we can do. Okay प्रभु जी। तो मैं भक्तों से विनती करता हूँ कि अगर किसी के पास कोई जिज्ञासा है आज के विषय वस्तु पर, तो कृपा करके अपने हाथ आप खड़े करेंगे तो आपको अनम्यूट कर सकते हैं प्रश्न पूछने के लिए। If anybody has any question, please raise your hand so that we can unmute you. प्रभु ने इतने सुंदर रूप से समझाए हमको ये विषय वस्तु कि किसी को कोई उसमें संशय नहीं है, इसलिए so thank you Prabhu, thank you so much Prabhu ji, and we look forward for your association Prabhu in the near future, and your association is Prabhu really very much helping us Prabhu ji in our study. तो हम सबको बहुत ही लाभ मिल रहा है आपके संग का, श्रीमद् भागवतम के तात्पर्यों से उनके गहनतम जो अर्थ है उसको समझने के लिए। और आप बहुत से बीच में उदाहरण भी देते हैं प्रभुपाद जी के और अन्य स्थानों से, वो हमको बहुत, जैसे आपने स्वयं बताया कि ऐसे उदाहरण जो बहुत जीवंत होते हैं उससे हमको विषय वस्तु समझने में आसानी होती है। So we have seen that you give so many examples and so many which is Prabhupada ji has used actually, so that really helps us to understand the subject matter. So we are very grateful to you. हम सभी मिलकर प्रभु जी का आभार। Yes प्रभु। सदानंद प्रभु जी ने हाथ उठाया। हाँ प्लीज प्रभु, उनको अनम्यूट करिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। 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 सदानंद प्रभु जी, वहां पर जहां पर आप बैठे हैं और भी मोबाइल होगी आसपास में, तो उसको या तो कम करना पड़ेगा वॉल्यूम, फिर पूछिए आप। हरे कृष्ण प्रभु जी। 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 Network issue. Prabhuji, he is from camp actually, so maybe in that room normally around 10-15 devotees. Other devotees are also there. हाँ, yes Prabhuji. सदानंद प्रभु जी, बाकी सब मोबाइल से आपको दूर करना पड़ेगा और उनके वॉल्यूम सबके बिल्कुल कम करने पड़ेंगे, और फिर आप एक मोबाइल से पूछिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रभु जी। हरे कृष्ण जी प्रभु। दान धर्मों के बारे में जो आपने बताया,
तो दान धर्म में जो हम लोग दान, जो भी हम लोग दान देते हैं, तो आपने एक बात बताया, जो दान देने में हमको जो कष्ट होना चाहिए, लेकिन वही कष्ट अगर हम लोग कष्ट होके दान देते तो भगवत गीता में तो भगवान तो तामसिक, राजसिक और ये तीन स्तर में बताया। तो इस चीज पे तो विरोधाभास लगते ना थोड़ा सा हमको। ना, मेरा अर्थ कष्ट से ये नहीं है कि हम कष्ट पूर्वक दान दें। हाँ मेरा अर्थ था कि हमको महसूस हो कि हम कुछ दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप जन्माष्टमी के लिए अंबानी के पास पैसा कलेक्ट करने के लिए गए और वो आपको 10 रुपया देगा, तो उसको कोई कष्ट नहीं मिलेगा। लेकिन एक व्यक्ति जिसका मासिक आय 100 रुपए है, वो आपको 10 रुपए देगा, तो उसको कुछ महसूस होगा, हाँ मेरी मेरी बहुत ही कष्ट पूर्वक जो मैंने आय की है उसमें से मैं कुछ पोर्शन दे रहा हूँ, तो वो महसूस होना चाहिए। तो उसको दान, वो दान ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जी बाबू जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम सभी मिलकर प्रभु जी का आभार प्रकट करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र के द्वारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय।